not the hard solid, right? In that category, the pure substance, again we repeat the topic. So in matter in our surroundings, the pure substances are those substances which contains only one kind of atoms and molecules. They are called as pure substances. So according to the atoms and molecules, I had already told you that atoms are the smallest particle of an element and the molecules are the smallest particle of compound. In that category, atoms are not be divisible, but the molecules can be divided into atoms. On this category, the pure substances are divided into two types. First, elements, and second one is the compound. Elements are those substances which is made up of only one kind of atom, that is called as element. For example, element is hydrogen, oxygen, nitrogen, iron, copper, silver, gold, and so on. These all are the elements because they all are made up of similar kind of atoms, so they are called as elements. But the compounds are those type of pure substances which is made up of only one type of molecule. For example, carbon dioxide is a compound, water is a compound. It is not a element, it is a compound. Similarly, carbon disulfide hai, carbon dioxide, nitrogen oxide, these all are the compounds. Now come to the substance category, pure substances and the mixtures. So pure substances are divided into elements and the compounds, and the mixtures are that substances which contains two or more than two different kind of particles. In particles, they may be atoms or the molecules, and these all do not chemically react. मिक्सचर्स का जब फॉर्मेशन होता है उस कंडीशन में दो या दो से अधिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी आपस में मिलते हैं उनको केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, देन दे फॉर्म अ मिक्सचर. मिक्सचर्स के एग्जांपल में एनीथिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू मिक्स आयरन फिलिंग विद द सैंड, सॉल्ट विद शुगर, आपने दो या तीन चीजों को आपस में मिला दिया और ये दो तीन चीजें आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, so they all are formed the mixture. In that category, mixtures are divided into two categories on the basis of the composition. First, homogeneous, and second, heterogeneous. Homo means similar, hetero means odd. In the chemistry language, homogeneous means uniform composition, but heterogeneous means non-uniform composition. So homogeneous mixtures are those mixtures which are in uniform composition. For example, cold drinks, fruit juices, salt in water, sugar in water, water in alcohol. These all are the examples of the homogeneous mixtures. And heterogeneous mixtures which have non-uniform composition. Non-uniform means जिसका composition पूरे volume में same नहीं होता है, they all are called as non-uniform or the heterogeneous mixtures. For example, sugar and sand, salt and sand, these all are included in the heterogeneous mixture. There may be also even your blood is also included in the heterogeneous mixture. So come to the elements. Elements on the basis of the broken down, these are all are to be divided into three categories: metals, non-metals, and the metalloids. These three words I think you studied in your 8th class. Metals are, wait a minute, only 2 minutes beta. After that, I will resolve all the queries. Metals are those type of pure substances which are basically hard, lustrous. For example, any metal, iron, copper, silver, gold, these all are the metals. Especially, mostly all the metals are hard except mercury. Mercury is liquid at room temperature. Next one is the non-metals. Non-metals are basically included in all the three states of matter: solid, liquid, and gas. Because sulfur is solid, but it is a non-metal. Oxygen, nitrogen are the gases. These all are the non-metals. Liquid, bromine is a liquid. So these all are the non-metals. Next category is a metalloid.
Metalloids are those type of pure substances which are the properties of in between metals and non-metals. Metalloids ऐसे pure substances होते हैं, ऐसे elements होते हैं जो metals और non-metals दोनों की property को show करते हैं, उन्हें हम metalloids कहते हैं. And example of metalloids are silicon, germanium, antimony, etc. These all are the examples of the metalloids. So in this chapter, you all learn and know about the different composition, different properties, different characteristics, and how do they react with each other, right? So this is the introduction of the chapter, that is matter around us pure. So all the students, if you have any query, 10 minutes are left to end the class. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको पूछ लीजिए. यस, ओके, माधव गर्ग. ओके माधव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए. मैम आपने मेटल्स पढ़ा दिया, नॉन मेटल पढ़ा दिया और मेटलॉइड पढ़ा दिया मैम, लेकिन आपने नोबल गैस नहीं पढ़ाया. बेटा नोबल हमने अभी पढ़ाया नहीं है. यू हैव रॉन्ग explanation in your mind. I had only taught you the introduction of this chapter, not the topic wise description. ओके मैम. नोबल गैसेस एक्चुअली बेटा आपको पूछना है, समझना है तो हम आपको बता देते हैं. नोबल गैसेस को, यस बेटा, नोबल गैसेस को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं. अब इन्हें नोबल गैस बेटा क्यों कहते हैं, ये जब आप अपने केमिस्ट्री की बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे तब समझ पाओगे. नोबल वर्ड का मतलब होता है आइडियल. The gases which have complete the octet, or the gases which are never react with any gas, they all are the noble gases, right? Remaining queries step by step आपको clear होती जाएंगी. Okay? Next, रघुराज सक्सेना. Yes बेटा, unmute yourself. मैम मेटलॉइड समझ में नहीं आया. मेटेलॉइड्स, ओके. यस मैम. मेटेलॉइड्स बेटा ऐसे एलिमेंट्स को कहा गया है जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है. इसको स्टेप बाय स्टेप बेटा जब हम आपको क्लियर करेंगे, ये चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन है. रफली आपको अगर समझना है तो 8th क्लास में बेटा आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़े थे. उसमें आपने मेटल्स में पढ़ा था मेटल्स हार्ड होते हैं, उनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, उनको इजीली ब्रेक कर सकते हैं. अब इन दोनों की इन बिटवीन प्रॉपर्टी बेटा कौन सी होगी? दे नॉट नीदर मोर हार्ड नॉर मोर सॉफ्ट, सो दे ऑल आर मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं कि हम उनको बिल्कुल ही नहीं तोड़ पाए, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इजीली हम उनको ब्रेक कर सकें. उन्हें मेटेलॉइड्स कहा जाता है. इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम. दीज ऑल आर द मेटेलॉइड्स, राइट? रघुराज, और कोई क्वेरी है बेटा? नो, ओके. अर्पिता श्रीवास्तव. यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मुझे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पूछना था. ओके बेटा. एलिमेंट्स बेटा ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम सिंगल काइंड के एटम से बनाते हैं. मींस एलिमेंट उन सारे प्योर सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो एक ही टाइप के एटम से बने. एक एग्जांपल बताते हैं बेटा आपको. एक जनरल क्वेश्चन है. आयरन मतलब लोहा. लोहे से बेटा आप चाहे फर्नीचर बनाइए, फर्नीचर का लोहा हो, या आपके विंडो पेन्स में जो लोहा लगा है, या लोहे के डोर्स हैं, इवन लोहे का कोई ऑटोमोबाइल बॉडी है, तो बेसिक मीनिंग ये है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सिमिलर होते हैं. इट डजंट मैटर वेयर इज इट प्रेजेंट, दैट आर द एलिमेंट्स. लेकिन कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं. कंपाउंड का मतलब है बेटा दो या दो से अधिक सिमिलर या डिफरेंट काइंड के एटम्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं. एक जनरल एग्जांपल बेटा आपको और बताते हैं. ऑक्सीजन गैस आपने सुना है, राइट? ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और जब ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइंड हो जाते हैं तब ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तब हम इसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं.
So that is the difference between the element and compound. कंपाउंड दो या दो से अधिक एटम से मिलकर के या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। और किसी को कोई भी क्वेरी है तो बेटा पूछ लीजिए। ओके, माल्या अग्रवाल, वेट अ मिनट बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम यस बेटा। मैम होमोजीनियस मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? बेटा होमोजीनियस मिक्सचर्स और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस है। जो कंपाउंड्स हैं दीज आर ऑलवेज फॉर्म इन फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड जब बनते हैं बेटा तो उसमें जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनका रेशियो फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर्स में हम किसी भी रेशियो में कुछ भी मिला सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा कॉम्पोजिशन के बेस पे, एक जनरल एग्जांपल आपको बताते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आपको बोलते हैं। सपोज आपने बेटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यू हैव मिक्स 1 टेबल स्पून शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर। आप एक ग्लास वाटर में बेटा 1 चम्मच शुगर मिक्स करते हो, राइट? तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस 1 चम्मच शुगर में मीन्स जो आपका स्वीट वाटर प्रिपेयर हुआ है उसका टेस्ट फर्स्ट स्टेप में अलग होगा, लास्ट स्टेप में अलग होगा, सेम होगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, रेशियो इसका इंडेफिनिट हो सकता है। किसी को स्वीटनेस ज्यादा पसंद है देन उस कंडीशन में क्या करेंगे, यू हैव मिक्स 2, 3 और 4 टेबल स्पून शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? लेकिन उसका कॉम्पोजिशन बेटा सिमिलर रहेगा, मीन्स आपने एक ग्लास में चाहे 4 टेबल स्पून शुगर मिक्स की हो या 1 टेबल स्पून, उसका जो टेस्ट है मीन्स उसकी जो स्वीटनेस है वो फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक सिमिलर होगी। दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। बट you can prepare this mixture in any ratio, means you can mix the sugar or salt as you want, आप जैसा चाहते हो वैसा उसमें मिक्स कर सकते हो। so that is the difference between the compound and homogeneous mixture, right? और कुछ पूछना है माल्या? नो मैम। ओके, और किसी को कुछ भी पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। I have resolved the query of Malia. बेटा अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप, माल्या डू यू हैव एनी क्वेरी? अनम्यूट योरसेल्फ। नो, किसी को कुछ नहीं पूछना है। वेरी गुड। सो वेयर इज नैतिक गर्ग? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, नैतिक गर्ग। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सबको क्लियर हो गया है? जिसको नहीं समझ में आया है अभी भी पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अगर किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। मोहित चौहान, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कंपाउंड क्या होता है मैम? कंपाउंड ओके, कंपाउंड बेटा ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनको फिक्स कॉम्पोजिशन में बनाया जाता है, उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड्स को बनाने में केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो, दैट इज अ मॉलिक्यूल। और किसी को कुछ पूछना है? ओनली 3 minutes आर लेफ्ट टू एंड द क्लास। अभी भी किसी को कुछ पूछना है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, आप अपने क्लासेस को डेली ज्वाइन कीजिए। एक भी एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस किया देन यू कैन नॉट कनेक्ट विद द अनदर टॉपिक। ऑल टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक भी लेक्चर एक्सप्लेनेशन बेटा मिस करोगे तो नेक्स्ट टॉपिक को आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। तो अगर आपको कोई भी अभी भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क। किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है? ओके, तो हार्डली 2 minutes आर लेफ्ट।
So I am ending the class. Last 2 minutes. अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है बेटा तो आप लोग पूछ लीजिए. इंट्रोडक्शन में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, एलिमेंट्स की कैटेगरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मिक्सचर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसमें कुछ भी अगर नहीं समझ में आया बेटा तो इसको पूछ लीजिए. No queries. Okay. So all the students, I am ending the class.